used to followed by V1. ठीक है, this represents past habit. Come in. Past habit. Then you can have, this is one. Then second is am is are followed by used to followed by V4, which is ing. This represents present habit. Then we have got third one, which is was, were followed by used to. इसमें भी आपका V4, which is ing form, it represents past habit. ठीक है, अगर आपका used to के साथ am is are आया या was were आया तो इसके बाद आपने ing फॉर्म यूज करना है, और अगर सिंपली यूज टू है तो फिर V1 फॉर्म यूज करना है. जैसे he used to disobey his parents, ऐसा. So used to disobey is V1. पास्ट हैबिट थी उसकी, अब गिव अप कर दिया. He is used to, अगर is used to आया तो disobeying, parents, used to disobeying his parents. तो is used to disobeying, this is V4. ये बता रहा कि अभी भी उसमें ये आदत है, is used to disobeying, कि अभी भी it's a present habit with that person. And he was used to disobeying, again V4, that is again past habits. So he used to disobey his parents or he was used to disobeying his parents. It tells you about the past habit. He is used to disobeying is present habit. We are used to practicing in the stadium. We are used to practicing in the stadium. तो हमारी आदत है, हम करते रहते हैं. Are you getting this? और I'm saying the politicians are used to committing such verbal mistakes. Are used to committing such verbal mistakes. So उनकी आदत है. Is it understood how you have to use used to, is used to, and was used to? Clear है? Right? ऐसे भी used to, जैसे कोई पुरानी लोकेशन अब नहीं है तो कहोगे if I remember correctly, there used to be a school at this location 10 years ago. There used to be a school 10 years ago. मतलब क्या हुआ? 10 साल पहले था, अब नहीं है. Now it is gone. तो वहां पे भी आप used to use कर सकते. Is this part clear? Used to समझ आया आपको? अगर सिर्फ used to and V1 है तो past habit. Am is are used to V4 है तो present habit. Was were used to and V4 है तो past habit. ठीक है, that is all this used to. अच्छा, used to हम past habit के लिए यूज करते हैं. इससे पहले मैंने बताया था कोई और एलिमेंट भी है जो past habit के लिए यूज होता है. वो कौन सा है बताओ, किसको याद है? और कौन सी और past habit हम किस तरह से बता सकते हैं? एक used to करके बताए. और कोई तरीका किसी को याद है? हाँ, या एक वर्ड है, बट वर्ड में क्या है? पास्ट कैरेक्टरिस्टिक हैबिट्स. शी वुड सिट बाय द विंडो, या ही वुड ओनली टॉक पॉलिटिक्स. पास्ट कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, ठीक है. लेकिन अगर पास्ट जनरल हैबिट बताए, सिंपल पास्ट टेंस. शी यूजुअली कैरीड, शी जनरली कैरीड एन अम्ब्रेला. They kept pets in the past. He played a lot of football in the past. Played. V2 form can be used for
पास्ट हैबिट्स. यूज्ड टू भी हो सकता है, V2 फॉर्म भी हो सकता है. वुड वाला पास्ट कैरेक्टरिस्टिक हैबिट्स है. आर यू गेटिंग दिस? जैसे अब कहेंगे लायंस लिव इन डेंस. ठीक है, पीपल यूज टू लिव इन डेंस. अब नहीं करते. पास्ट में पहले ह्यूमंस यूज टू लिव इन डेंस, या ह्यूमंस lived in dens in the ancient time, in the past time. Lived in dens. So that was a habit. So lived is V2 form. Is this part understood? Everyone. So past habit आपने कैसे करना है? That was used to. Must is done. Used to is done. इसके बाद क्या हमारा? Must, used to, need and dare. दो ही बचते ना अभी. Need and dare. Okay. Shall I rub this all? Done? जैसे ought में आप ought to लगाते, वैसे need में need to followed by V1 और need not followed by V1. ऐसे होता है. V1 is the main verb. So need to और need not. इसका एक ही main use है, which is immediate necessity. कोई इमीडिएट या मतलब एकदम अर्जेंट नेसेसिटी के लिए आप यूज करते. सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड नीड टू? कोई कहता एग्जाम्स आर कमिंग, आई मस्ट वर्क हार्ड. एग्जाम्स आर कमिंग, आई नीड टू वर्क हार्ड. व्हाट इज द डिफरेंस? मस्ट में नेसेसिटी, इधर अर्जेंट नेसेसिटी. मस्ट में ठीक है, एग्जाम्स आर कमिंग बट यू हैव टाइम. ऐसे टाइम की कमी नहीं है, बट यू नीड टू वर्क हार्ड. You cannot waste time. टाइम बहुत कम है. So यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहे हैं. जैसे कोई कहता है I need to talk to you. So that is urgent. That is important. I need to talk to you. You need not attend this class because you've already attended. So there is no urgent or immediate need for you to attend this class. You need not book a cab to the airport. I will drop you there. You need not book a cab. So there is no urgent need for you to book a cab to the airport. I will drop you there. Are you getting this? So this is the only one. That is immediate necessity. Then next one we've got is dare. So dare may be, you have dare to followed by V1 and dare not followed by V1. So it has got two. That is, number one is to have or not have courage. To have or not have courage. दोनों केसेस में आप dare to और not dare to use करते. And number two is to give warning. To give warning. तो वहां पर भी आप dare to use करते हैं. ठीक है. To have or not have courage, or it is used to give warning to someone. Both cases में you can use dare. अब courage की बात करें तो let's say the acrobat. Who's an acrobat? Acrobat who performs gymnastics or flexible exercises at a height. ACR means height. So performs. The acrobat dares to walk on the rope between two buildings without a support. He dares to walk on the rope between two buildings without a support. For that you need to have courage. You need to have courage. है ना? कैसे? Can मतलब? Can is present ability. So if you say he can walk on the rope, he can walk on, उसके पास वो ability है. तब आप ability की बात कर रहे. अब कोई बहुत खतरनाक कोई ऐसा जिसमें रिस्क है, वो काम कर रहा है, तो उसमें करेज चाहिए ना. अब on a lighter note, the small kid dares to call principal names on his face. मतलब इतना शैतान है कि प्रिंसिपल के मुंह पे उसका चिढ़ाता है. So that also needs daring. That also needs courage. The small kid dares to call principal names on his face.
उसके भी डेयरिंग चाहिए। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शुड नॉट हैव दैट करेज, यू डेयर नॉट अटेम्प्ट such an action without the assistance of a professional. You dare not attempt such an action. So you should not have that courage. Are you getting the point? अब that can be taken as a warning also. जैसे कोई किसी को warning कहता है, you dare not speak to me in such a language. Generally, you dare not. Dare not is giving warning. You dare not speak to me in such a language. Or, how dare you speak to me like that? How dare you do this? So, how dare you do this is also giving some kind of warning. Is this understood? Both these are clear? किसी कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? Right? Okay. Then this is all about the modals. कहाँ पे क्या यूज करना है? अच्छा, इसमें अब अगर परफेक्ट लगाएंगे, हैव लगाते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मे हैव, कैन हैव, विल हैव, ये सब ना सेम मीनिंग देते जो आपका विल है, मे है, कैन है, इसमें चेंजेस नहीं आते। लेकिन वी हैव समथिंग एज could have, should have and would have, इसमें थोड़ा चेंज ऑफ मीनिंग हो जाता है। could have, should have और would have में थोड़ा चेंज ऑफ मीनिंग है। When you say could have, एक तो इसका अपना है, जैसे could का एक यूज क्या है? Possibility. So could have represents possibility, which is जो कि could का भी यूज है, you know, it could rain today. Yeah, where is John? John could be in the library. Or John could have gone to the library. John could have gone to the library means there's a possibility. The could have and could be and could can be used for possibility. Are you getting? But the other one is unfulfilled action. You could have ended this this Cold War by talking to him. You could have ended this Cold War. Why did you not do it? You could have. आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं. You could have helped that person. Means unfulfilled, not accomplished. You could have accepted that job offer. It was very beneficial. You could have accepted that job offer. So that is unfulfilled action. Same way, should have is unfulfilled obligation. You should have helped that poor fellow. You have all the money with you. You should have helped that poor fellow. ये आपकी responsibility थी, obligation थी. वो बेचारा need में था, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी, आपकी responsibility थी. You should have helped that poor fellow. You get my point? The person was very apologetic. You should have forgiven that person. Why did you not forgive that person? You should have forgiven. So something that you did not do. Understand? अब would have is used as a justification. अगर वो पर्सन पे आपने ब्लेम किया कि you should have done it, तो वो जस्टिफाई करता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया. So it is used for justifying the unfulfilled obligation. कैसा क्यों नहीं किया उसको जस्टिफाई करने के लिए आप would have यूज करते. जैसे उस पे आपने किसी पे इल्जाम लगाया, you should have helped the poor person because you are very rich. You should have helped that poor person. आपका क्या जाता है? You should have helped that poor person. और वो वहां से कहता है, I definitely would have helped that poor person, but I was not carrying my purse with me. I had no money on me. So there I was under constraint. मेरे पैसा नहीं था, मैं उसको क्या देता? Otherwise, I would have helped that poor person. Are you getting my point? This is justification of that unfulfilled obligation. The flight should have landed at 11 a.m.
but because of fog it got delayed. It should have, इसका करेक्ट टाइम क्या था, ऑब्लिगेटरी टाइम था 11 बजे उसने लैंड करना था. It should have landed at 11 AM, but because of fog it got delayed. You got the point? That is how we have to use could have, should have and would have. अच्छा, इसके बाद ये तो ये हो गया. एक और आपका दिस ऑक्सिलरी वर्ब है, वो भी याद रखना, had better. Had better के साथ हमेशा V1 यूज करते, सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब. had better के साथ V1. और ये किस लिए यूज करते हैं? इट इज अ सिंसियर एडवाइस. इट्स अ सिंसियर एडवाइस फॉर फ्यूचर. अ सिंसियर एडवाइस फॉर फ्यूचर, किसी भी फ्यूचर एक्शन सिंसियर. सो जैसे you had better study. You had better study now, or you will not succeed in the exam, whatever. You had better study. Study is V1. You had better hurry up. You had better make haste or hurry up, or you will miss your train. So किसी को एडवाइस करते हो, आप ऐसा करो नहीं तो ऐसा consequences हो जाएंगे. So had better is used to give advice. Had better and V1. Had better and V1. Are you getting this? ठीक है, this is also. हमने एक डायरेक्ट इंडायरेक्ट में एक और स्ट्रक्चर किया था, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो भी याद रखना. अगर ऐसा होगा, इट इज कभी हाई टाइम होता है, सॉरी इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और हमेशा उसके बाद क्या आता है? V2. ये हमारा एक आया था ना कि उसमें सिंपल फास्ट भी आ रहा था और पास्ट परफेक्ट भी आ रहा था, लेकिन लगना क्या है? सिंपल फास्ट. सो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. अ सेंस ऑफ अर्जेंसी जब बताते, तो इट इज हाई. अब यहां में कहा यू हैड बेटर स्टडी नाउ. अब इस इधर कहेंगे इट इज हाई टाइम यू स्टडीड. यू स्टडीड नाउ. देखो फर्क क्या है, उधर स्टडी है, इधर क्या है? स्टडीड. सो इट इज हाई टाइम के साथ V2 फॉर. इट इज हाई टाइम यू स्टडीड. इट इज टाइम वी. ये अगर अर्जेंसी है, मतलब अभी तक नहीं किया, डिले किया, और अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते, तो उसमें हम ये यूज करते हैं, इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, उसके साथ हमेशा V2 लगाते हैं. मतलब आपके पास लास्ट चांस है, अभी तक आपके पास टाइम था, आप नहीं कर पाए, अब आपके पास लास्ट चांस है, अभी नहीं किया, देन इट इज गॉन. सो इट इज टाइम यू स्टडीड, अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड. या इट इज हाई टाइम वी वोक अप. वी वेक अप नहीं, नेवर यूज V1. वी वोक अप फ्रॉम आवर स्लीप. अभी तक सोते रहे, अब भी सोए तो गाड़ी निकल जाएगी. सो वी वोक अप, दैट इज व्हाट यू हैव टू यूज V2. इज इट अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडल्स. यही स्ट्रक्चर से इन्हीं को अपने वुड, शुड, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव कैसे यूज करना है दिमाग रखना है. सेंटेंस में जो दिया हुआ है, सब्जेक्ट देख के डिसाइड करना है कि क्या आना चाहिए. राइट? सो नाउ विल टेक अप सम क्वेश्चंस हियर. देखो मॉडल्स में ऐसा आपको लगेगा कि यार मेरे को सारे यूजेस आ गए, मेरे को पता है सारे सबके बारे में, अब मेरे लिए इजी होगा क्वेश्चंस को आंसर देना. बट पॉइंट इज कि सेंटेंस में कोई छोटी सी बात ऐसी लिखी होती है, ऐसे लगेगा यार इसमें तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में कोई छोटी सी बात ऐसी लिखी होगी कि जिससे आपका एक ही वर्ड आएगा, या मानो तीनों आ सकते, 3 मॉडल्स आ सकते. तो सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा मॉडल है? जरूरी नहीं है कि 5 ऑप्शंस में से 4 गलत होंगे तो 1 सही होगा. 5 ऑप्शंस में से 3 सही हो सकते, 2 गलत है, 3 सही हो सकते. उन 3 में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, मॉडल्स में ये प्रॉब्लम है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपने चूज करना है बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन देयर.
Are you getting? So just 3, 4, 5 and 6. Just pass this one. Take 1, 2, 3, 4, 5. इसको आगे पास ऑन कीजिए उस साइड. Everybody got this, right? Now, as you can see, simple fill in the blanks है. इसमें rules दिए हुए हैं. आपने बताना है कि क्या यूज चूज करेंगे. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस यू ट्राई, लेकिन ध्यान से करना. फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, मगर ध्यान से कीजिएगा. कहीं पे थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर्स है. सम मिस्टेक्स आर देयर. आई विल टेल यू अबाउट दैट. स्लाइड प्रिंटिंग एरर्स आर देयर. मतलब कहीं पे ब्लैंक के बाद भी वो दिया हुआ है और नीचे ऑप्शन में भी वो फिर से रिपीट किया हुआ है. ब्लैंक के बाद वैसा कोई नहीं होना चाहिए था, बट थोड़ा सा इसमें एरर्स दिख रहे हैं. कर लिया.
स्टार्ट करें। अब यहां लिखा है यू डैश फॉलो द मैनुअल एग्जैक्टली अंटिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस। अब देखो कैसे आपको शुड लगेगा कि शुड आ सकता है, कि शुड का मतलब है कि करना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स यू डैश फॉलो द मैनुअल एग्जैक्टली, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन? कि जैसा मैनुअल है वैसा ही करना है, एक भी वर्ड का आप फेरबदल नहीं कर सकते, आप अपना कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते। दिस इज काइंड ऑफ दिस एग्जैक्टली टेल्स यू, लिखे अंटिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस, दिस इज काइंड ऑफ a command given by a senior to a junior who is maybe just joined the company or who is new। उसको बताया कि आप अपना करोगे तो गलती कर लोगे, तो आप वैसा ही करोगे। और ऐसा मतलब जैसा सिचुएशन बता रहा है, इट्स काइंड ऑफ एन ऑफिस एनवायरनमेंट या कोई वर्क एनवायरनमेंट है, आपको सिचुएशन तो मैनुअल एग्जैक्टली अंटिल यू गेट मोर एक्सपीरियंस, द आंसर इज यू शैल। You shall, and shall represents in second person, shall represents command or order. You shall follow the manual exactly. The word exactly tells you that it falls in the area of command। तो ऐसे छोटी एक मतलब ऐसे बातें आपने ध्यान में रखनी है। Exactly until you get more experience। There dash be a minimum of 2 members of the company at the meeting। Requirement है, उसके बगैर नहीं हो सकता। So you don't have a choice here। So there must be a minimum। यहाँ पे ought to नहीं आएगा, ought to में तो आपका फिर choice है, ought to should में choice है, इधर कोई choice है, minimum होना ही होना चाहिए इतना। तो there must be a minimum of 2 members of the company at the meeting। If he reaches Delhi by 9 a.m. tomorrow, we dash go for a picnic। We could। See, could क्यों? Because could talks about future here। ऐसे हम इफ के साथ अगर रीचेस है विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमने कहा विल, शैल, मे, कैन या सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट अगर और कोई मॉडल आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है, कुड कैन बी अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मैंने उस दिन बताया था, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने इफ कंडीशन दिए थे ना आपको, मैंने क्या कहा, विल, शैल, मे, कैन तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर जैसे पॉसिबिलिटी में कुड आता है, पॉसिबिलिटी में शुड आता है, तो फिर वो भी प्रेजेंट टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट फ्यूचर। आर यू गेटिंग ए पॉइंट? जैसे मे पॉसिबिलिटी है, कैन पॉसिबिलिटी है, वैसे कुड भी पॉसिबिलिटी है। इज दैट अंडरस्टूड? सो वी कुड गो फॉर अ पिकनिक। डैश यू गो टू कोरोना वायरस फ्लू कैंप फॉर $4,500। यस, ये तरीका है कहने का, मतलब कि किसी को तो अगर आपको इतने पैसे दिए जाए, क्या आप जाओगे वहां पे? क्या इतने पैसे पे ये करोगे? तो उसमें आप वुड ही यूज करते। वुड यू डू दिस for this money? Would you do this? Would you go there? Would you jump from the bridge? हम कोई ऐसा अब extreme case, would you jump from the bridge if somebody pays you $1 million? Something like that। So would you go to coronavirus flu camp for $4,500? You dash have a health screening to enter a nursing home, which is a requirement। Requirement is requirement। So you must have a health screening to enter a nursing home। So यहाँ पे must आएगा। Dash I introduce you to my cousin। Formal way, it's always जब आप ऐसे formally करते, formal way में हमेशा आपने may use करना है। May I introduce you to my cousin। May I introduce you to my cousin। ठीक है। Children dash be taught in mother tongue। एक बात बताओ, अब पहले सेंस लेते, क्या मदर टंग में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? अगर मदर टंग में बच्चों को पढ़ाने लगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो आपको कितने टीचर चाहिए? एक पंजाबी है, एक मराठी है, एक बंगाली है, एक डोगरी है, एक कश्मीरी है, कितने टीचर चाहिए? हाँ, गलत है। किस में पढ़ाते हैं? यूनिवर्सली क्या पढ़ाते हैं मुझे ये बताओ। अभी यहां से बच्चा जाता है पुणे या महाराष्ट्र या बेंगलुरु, क्या वहां पे अगर वो मदर टंग में पढ़ाएंगे, क्या यहाँ का बच्चा एडमिशन ले सकता है वहां पे? आपका एक कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कोड होता है। आप एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, आप किसी गांव में बोलोगे यार वहां पे उनको इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, मदर टंग में पढ़ाते हैं, ठीक है, गांव या लोकल एरिया में पढ़ा सकते हैं जहां पे
एक्सेप्शन है, बट जनरली नॉट होना चाहिए ना। तो आप कह रहे हो, आप अगर कहते हो चिल्ड्रन ought to be taught in mother tongue या should be taught in mother tongue, that is wrong. In fact, children should not be taught in mother tongue. They should be taught in a universal language. चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, that is a universal language. So children ought not be, अब बी एक हटा दो क्योंकि इसे यहां भी बी लगाया, यहां भी लगाया, ought not be taught in mother tongue. Are you getting? अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज अगर आपका सही होता फिर क्या लगाते? चिल्ड्रन शुड बी या चिल्ड्रन ऑट टू बी? वे तो दोनों सेम थे। चिल्ड्रन मस्ट बी मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, चांस ही नहीं है कोई। यू गेट माई पॉइंट? सो आंसर इज चिल्ड्रन ऑट नॉट बी टॉट इन मदर टंग। द आंसर इज बी। ओके, 8th, he said a medical team dash leave for Italy tomorrow for screening Indians. Will, क्यों? रीजन अब ध्यान में रखो, आपने किया भी है फिर भी वो ध्यान में नहीं रखा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर कहीं पे लिखा होगा he said, they asked, इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो क्या होता है? विल कैसे आएगा? विल तब वुड में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ पे सिंपली ऐसा लिखा होता, he said नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता a medical team dash leave for Italy, then I could say yes, a medical team will leave for, but he said, they argued, then it goes to indirect speech. Indirect speech में आपने वो rules याद रखने। So he said a medical team would leave for Italy tomorrow for screening Indians. Next one. We dash ask everyone to be a public health practitioner. We need to ask everyone to be a public health practitioner. It must be an urgent situation. मतलब जैसे कोरोना वायरस फैल गया, डॉक्टर्स की कमी है, तो आपको हर किसी को थोड़ा ट्रेनिंग देके सिचुएशन को संभालना है. So it's an urgent necessity. It's an urgent, immediate necessity. So we need to. I think that he dash be as big a star as you have in the UFC. Okay, simple. Why can क्यों नहीं आएगा? If you say, यहाँ पे ये I think कह रहा है. I think का मतलब है वो अपनी ओपिनियन दे रहा है. अपनी ओपिनियन दे रहा है ना? Now, if you say he can be, तो can मतलब क्या हुआ? Can is either present ability, क्या वो present ability है? I can do this नहीं है, present ability नहीं है. क्या वो request है? नहीं है. आप कह रहे पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैन की पॉसिबिलिटी तो कम है ना. अब कैन है, मे है, कुड है, माइट है, कहां पे फॉल करती पॉसिबिलिटी? ही कैन बी मतलब आप डाउट में हो. फिर अगर आप ये कह रहे हो आई थिंक दैट ही कैन बी, मतलब हो भी सकता, नहीं हो सकता. कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है तो श्योर ओपिनियन देगा कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना ही होना है. अब बात समझो मैं क्या बता रहा हूं. तो ही विल बी एज बिग अ स्टार. तो यहाँ पे पर्सन हैज टू बी वेरी डेफिनेट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग. आई थिंक अपना ओपिनियन दे रहे हो आप, तो आप डाउट थोड़ी एक्सप्रेस करोगे. अगर आप कैन बता रहे हो, कैन इज पॉसिबिलिटी बट इज अ डाउटफुल पॉसिबिलिटी. इट्स 50%. मे, कैन, कुड ये सब नियरली सेम रहते हैं. यहाँ पे डेफिनेटिवनेस है. सो आंसर क्या आएगा? आई थिंक ही विल बी एज बिग अ स्टार, नॉट ही कैन बी. इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, किसमें? बोनस में गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो. ये पहला हैंड आउट है, अभी और प्रैक्टिस चाहिए. तो मैंने क्या बताया कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है वो देखना है, सिचुएशन देखनी है, सेंटेंस को समझना है. मॉडल्स इसीलिए गलत होते हैं. 10 हो गए हमारे. अब 11 से लेके 25 तक करो ध्यान से, पढ़ के समझ के. आपने यूजेस पढ़े हैं, यूजेस समझ के अब ट्राई करो ये 15 क्वेश्चन. मॉडल्स में प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो. आंसर्स देखो, और जब आंसर्स आपको नहीं समझ आ रहे, कहीं पे मुश्किल आ रही है, वो मार्क करके मेरे पास ले आओ.
देखो क्लासरूम में आई विल गिव यू थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विल डू सम हैंड आउट, सम प्रैक्टिस, ठीक है, वो डायरेक्शन होगी. देन ऑन योर ओन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. इट्स नॉट दैट कि इतना ही करना है आपने. जैसे मैंने कहा बुक, कोई बुक तो होनी चाहिए आपके पास प्रैक्टिस के लिए. कोई बुक रखिए, कोई भी, मैंने बताया था अरिहंत पब्लिकेशन की, मैग्रा-हिल की, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें सारा हो, एसएससी जेके एसएसबी, है ना, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी. उसमें से आंसर नहीं निकल रहे, मेरे पास ले आओ. टीचर किस लिए है? क्लास के बाद, क्लास से पहले आई विल चेक दैट आउट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू जिस तरह से होता है. बट क्लासरूम में सी आई कैन नॉट गिव यू इनडेफिनिट प्रैक्टिस. ये इस कोर्स का एक ड्यूरेशन है. सी अब मैं कहूंगा मॉडल्स में, यार आपको 4 दिन सिर्फ मॉडल्स पढ़ाऊंगा, 4 दिन में सिर्फ शीट्स दूंगा, प्रैक्टिस करो. इट्स नॉट लाइक दैट. क्लासरूम इज अ लिमिटेड टाइम जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस दी जाती है, बट देन you got the direction, you have to work on it. And yes, teachers are there to help you outside classroom. You can come with your doubts, questions, and we are all ready to help you. मैंने क्या बताया? और आपने फोकस कहाँ करना है? सेंटेंस पे. सेंटेंस को समझिए क्या बोल रहे हैं. और दूसरी बात, अगर सारे सेम लग रहे हैं, इसका ये मतलब है कि जो यूजेस है उसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने फिर यूजेस का रिवीजन अच्छी तरह से नहीं किया. क्यों नहीं पता चलता? अभी हम आएंगे उस पे, अभी आएंगे उस पे. हर किसी में पहले यूजेस समझ, पढ़ने और समझने हैं. देखो ना, प्रीपोजिशन में मैं कहूंगा, आपको पता, आपको सपोज मैं कहूं ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स, है ना, गलत हो गया. अब आपको नहीं पता, नहीं पता है ना, तो गलत हो गया. कि गुड के साथ हमेशा एट आता है. अब पता लग गया. गुड या बैड के साथ हमेशा एट आता है, इन नहीं आता. देखो मेरे को पता था आप इन बोलोगे. हाँ, तो ऐसे ऐसे करना गलत है. आपको लगता है ये ठीक है, लेकिन होता ठीक नहीं है. ठीक होने के लिए पढ़ना पड़ता है. आप बिना पढ़े क्या रे तो इजी हो जाएगा, इनका ऑन लगा देंगे, उनका, वैसा नहीं होता. हर प्रीपोजिशन का यूज होता है. सो गुड एट मैथमेटिक्स, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. इंसिस्ट के साथ क्या आएगा प्रीपोजिशन? फिर गलत हो गया. इंसिस्ट ऑन होता है. ये चीज आती है रीडिंग से. बुक्स पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो. जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, समझोगे, उसमें प्रीपोजिशनल यूज वहीं पे सारा क्लियर हो जाता है. जहां पे आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको ये देखना है विच एज पर द सिचुएशन विच इज द बेस्ट मॉडल, वही आंसर है. मैंने ये भी बताया कि हो सकता है 2 या 3 ठीक होंगे, 2 या 3 लग सकते हैं वहां पे, लेकिन उनमें से कौन सा बेस्ट है सिचुएशन के लिए, दैट इज योर आंसर. कुछ मिसप्रिंट्स है, जो जैसे यहाँ पे एक मिसप्रिंट था ना, बी लगाया था, बी नीचे भी था, बी ऊपर भी था. आगे भी 1-2 मिसप्रिंट्स ऐसे हैं. फिर साथ साथ करते चलिए, लेट्स डू इट टुगेदर. ठीक है, 11th लेते हैं. रोहन डैश नॉट स्विम व्हेन ही वाज यंग, है ना, पास्ट एबिलिटी. व्हेन ही वाज यंग, तो पास्ट एबिलिटी मींस कुड नॉट स्विम. इसमें कुड ही आएगा, वुड तो नहीं आएगा. कुड नॉट स्विम. Dash, I remind you that McLaren was disqualified in 2007 after the espionage means spying case. So it's a way, जब भी फॉर्मल तरीके से आप एड्रेस करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, फॉर्मल में हमेशा मे यूज करते हैं. मे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी, मे आई रिमाइंड यू, मे आई इंट्रोड्यूस
you to my cousin. So may I remind you that McLaren was disqualified. तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से इसलिए may आएगा. We dash not let ourselves be overwhelmed by fear. आपने मस्ट बोला, आपने शुड बोला. अब मुझे रीजंस बताओ अपने. आपने मस्ट बोला. सही लगा. ओके, मस्ट सही है. क्यों मस्ट सही है? Overwhelmed by fear is a very negative thing. किसी भी हालत पे वो हम पे हावी नहीं होना चाहिए. अगर आप शुड कहते हो, शुड में चॉइस आ जाती है. यार ठीक है, किया तो किया, नहीं किया तो चलेगा, लेकिन इस केस में नहीं चलेगा. इट्स एन एक्सट्रीम केस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हेन यू से, अब इसने एक वर्ड यूज नहीं किया, बट इट इज इम्प्लाइड. जैसे in no at no cost or in no circumstances we dash let ourselves be owned by fear. Not का मतलब वही है, किसी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए. जब किसी हालत पे नहीं करना चाहिए, so it's like it's saying same as we must not let ourselves. तो must not की मतलब आपके पास इसमें choice नहीं है, because it's an extremely harmful thing. Are you getting my point? Should में देखो, आप कहोगे we should help the poor. We should help the poor. ठीक है, आपने हेल्प नहीं भी किया, कोई और करेगा, है ना? इट्स नॉट एक्सट्रीमली हार्मिंग. तो यहां पे क्या सिचुएशन बनी? वी मस्ट नॉट लेट आवरसेल्व्स बी ओवरवेल्म्ड बाय फियर. ऐसे एक्सट्रीम केसेस में देयर इज नो चॉइस, सो मस्ट. व्हाई सो लेट? चलिए कोई नहीं. वी डैश अप्लाई बेसबॉल रूल्स टू क्रिटिकल लाइफ डिसीजंस और डिसीजन. बेसबॉल रूल्स होते हैं. अब क्रिटिकल लाइफ डिसीजन में क्या हमें बेसबॉल रूल्स अप्लाई कर कि ये ऐसे तो ऐसे ही होना है? क्रिटिकल लाइफ डिसीजन में सिचुएशन देख के आपको चेंज करना पड़ता है. सो बेसबॉल रूल्स आर लाइक बिल्कुल ऐसा होना कि लकीर का फकीर. सो इधर क्या आना चाहिए? वी ऑट नॉट के साथ टू नहीं आता, यहाँ पे डी में टू हटा दीजिए, मिस प्रिंट है. वी ऑट नॉट अप्लाई baseball rules to critical life decisions. We ought not. Are you getting? May not नहीं आएगा, could not नहीं आएगा. May और could तो यहाँ पे possibility बता रहे. Ought not मतलब के आपको क्या करना चाहिए, your obligation or responsibility. Next one. You dash go ahead and buy stocks now. May. अब वो कैसे आया? देखो वो कैसे आया. जब ये कह रहा है यू डैश गो अहेड एंड बाय स्टॉक्स नाउ, गो अहेड का मतलब है आपको ग्रीन सिग्नल दे दी, यानी अभी तक रेड सिग्नल है, अभी तक आपको रोके हुए हैं, तो अभी बता रहे हैं अब आप जा सकते हो. सो इन अ वे इट्स काइंड ऑफ गिविंग यू परमिशन टू डू समथिंग. समझ आ रहा नहीं आ रहा? व्हेन यू से, जब गो अहेड इसने कहा, गो अहेड का मतलब है अभी तक आपको रोका हुआ है, अभी तक आपको जाने के लिए नहीं बोला. नाउ यू मे गो अहेड. तो परमिशन में हम क्या यूज करते हैं? मे. किसमें? शुड इसलिए नहीं आएगा. शुड, जस्ट अंडरस्टैंड, यू शुड गो अहेड एंड बाय स्टॉक्स नाउ. गो अहेड के साथ शुड कैसे आएगा? You should buy stocks when it is appropriate. You should buy stocks at a proper time. तब आएगा. जब इसने go ahead कहा, go ahead means कि somebody has stopped you from taking action. So अभी टाइम है, तो तभी तो मतलब इससे पहले आपके पास टाइम नहीं था. This is the right time, so you may go ahead. It's kind of somebody permitting you, which is should और may में अगर देखोगे यहाँ पे may का ही सेंस बनता है. Go ahead के साथ should नहीं आता. Go ahead, देखो go ahead क्यों कहेगा कोई किसी को? Go ahead तब कहेगा कि किसी ने मतलब सारा इस पे रखा हुआ दूसरे पर्सन पे. Just understand, जो कह रहा है, जिसको एक्ट करना है, उसने
सारा का सारा डिसीजन किस पे रखा हुआ है? जो ये बोल रहा है, तो ये उसको काइंड ऑफ टीच भी कर रहा है या नसीहत दे रहा है या परमिट, सो ही इज इन अ सुपीरियर पोजिशन। हाँ ठीक है, अभी अभी सही वक्त है, यू मे गो अहेड एंड बाय स्टॉक्स नाउ। इट्स काइंड ऑफ ही इज एट अ सुपीरियर पोजिशन, उसने उस पे सारा दारोमदार रखा हुआ है जब वो गो अहेड कह रहा है। शुड होगा कोई तीसरा पर्सन, गो अहेड शुड में नहीं कहेगा ना, वो शुड होगा कोई तीसरा पर्सन एडवाइस करता है क्या, यू शुड बाय स्टॉक्स, टाइम इज राइट, यू शुड बाय स्टॉक्स नाउ। गो अहेड कोई स्ट्रेंजर नहीं कहेगा, इसने पूरा इस पे रखा हुआ तभी तो गो अहेड कह रहा है। देखो वर्ड टू वर्ड ये फर्क पड़ता है, इसमें ऐसा ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ द लैंग्वेज। तो यू मे गो अहेड नॉट शुड गो अहेड, गो अहेड के साथ शुड नहीं आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, he dash be scared of dogs until senior dog mini won his heart. Used to be, he used to be until senior dog mini won his heart, मतलब पहले used to be scared, he used to be scared। पैसिव में क्या आता है? पैसिव, पैसिव वॉइस करो इसको। somebody, देखो somebody used to scare me, ऐसे देखो somebody used to scare me, क्या बना? V1 फॉर्म बना, I used to be scared of somebody। अभी समझ आया? जैसे हम will be कहते हैं, shall be कहते हैं, वैसे used to be, ये कौन सी वॉइस है? पैसिव वॉइस। Is everybody getting this? तो ध्यान में ये भी रखना है। So he used to be scared of dogs until senior dog mini won his heart। Is that understood? Next one. It would be wonderful if she dash be in that lobby to see her family there tomorrow. If she, answer, could, C-O-U-L-D, correct. If she could be in that lobby, could is talking about future possibility, तो if के साथ अगर future possibility आप लगा रहे हो तो लग सकती है। If she could be in that lobby, it would be wonderful। आप would लगाया तो इसके साथ आप could लगाओगे। might is a negative possibility, वो नहीं लगा सकते। may, will, can तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपका would लगा हुआ है। Next one, I dash admit I have also topped up the wine racks। अब जिसने रीडिंग की है उसको पता है यहाँ पे एक ही वर्ड आता है, I must admit। ये एक स्ट्रक्चर ही है, ये स्ट्रक्चर इसमें कहते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब ये याद रखना, I must admit, इसमें will, shall, ये स्ट्रक्चर में याद है, I must admit, I must admit। देखो इंग्लिश में काफी चीजें स्ट्रक्चर्ड है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो वैसे ही आपने यूज करनी है, I must admit। नेक्स्ट वन, The law dash make all men equal, but they are all equal before the law। Yes, but है ना, अब but के बाद लिखा they are all equal before the law। लॉ के आगे सारे इक्वल है, तो but से पहले इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होगा? नॉट। सो द लॉ कैन नॉट मेक ऑल men equal, मतलब उनको बना नहीं सकता इक्वल, अलग अलग है सारे, लेकिन लॉ के आगे सब इक्वल है। Did you get that? It's a proverb। The law cannot make all men equal। Next one, I often think that I dash have studied medicine, not pharmacy। डांस से पढ़ो, I shall have, no, आप रिवाइज, I ought to have, unfulfilled responsibility। ought और should सेम है, should have studied या ought to have studied, मुझे ऐसा करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। अभी मैंने बताया ना, should have, could have is unfulfilled, तो उसमें ought to have भी आता है। जब आपने should have कहा, should is same as ought to, तो ought to have done something is जो आपने नहीं किया। Is it understood? I often think that I ought to have studied medicine, not pharmacy। पढ़ा उसने फार्मेसी है, लेकिन अब उसको लगता है कि मुझे मेडिसिन पढ़ना चाहिए था, जो कि नहीं पढ़ा। सो अनफुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ आ रहा है सबको? Is it clear to everyone? So ought to have
studied. Next one. Extreme rain dash caused the river to flood the city. Yes. जब भी कोई natural, understand, ये याद रखना, natural phenomenon, कोई scientific या astronomical fact जो होता रहता है, उसमें हमेशा can, ability आती है. जैसे आप कहोगे an earthquake in the ocean can trigger a tsunami. उधर may ट्रिगर नहीं आएगा, will ट्रिगर नहीं आएगा, would ट्रिगर नहीं आएगा, could ट्रिगर नहीं आएगा, वहां पे हमेशा can. तो same extreme rain can cause the river to flood the city. Natural phenomenon, astronomical phenomenon, scientific phenomenon जो होता रहता है उसके साथ ability बताते can. इसको याद रखना. Is that understood everyone? Can. Next. People dash worry more about global warming. Should worry. मतलब उनकी responsibility है. That is the closest care. Okay, it is a national disgrace that dash not be discussed in the halls of power in Washington. It's a warning, yes. अगर national disgrace इनसे warn कर रहा है कि ये national disgrace है, that dare not be discussed. तो मतलब कि you should not, it's a warning to you, don't discuss it in the halls of power. So dare not be discussed. They dash know who caused the accident. Because when you are not completely, पता नहीं है कोई भी हो सकता, then they might know who caused the accident. Are you getting this now? So they might know who caused the accident. Earth dash be a water world covered in a global ocean. Used to be a water world. पहले थी, अब नहीं है. It used to be a water world. देखो आ रहा ना अभी आपको कुछ क्वेश्चंस आप दे रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहा. आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करो आ जाएगा. Next one. Now you have to fill in the blanks here. As a child, I dash play for long hours, but now I cannot. हाँ, तो past में थी ability, अब नहीं है. I could play for long hours. In the hotel industry, it's important that you dash pay attention. You must pay attention. मतलब necessity, important है. I think that those journalists dash be from some local newspaper. Might be from some local newspaper. Have to तो compulsion है, तो might be. जब आपको पूरी तरह पता नहीं है तो might use कर सकते हैं. You should have listened to me. You dash have gone to meet him. You need not have gone to. There was no urgent necessity for you to meet him. Need not have. You dash leave tools around kids as they might hurt themselves. You should not leave tools around kids. So that is advice, responsibility. Our principal said that good students dash rewarded, shall be rewarded. So good students is third person mein it's a promise by their principal, shall be rewarded. I dash go to the seminar because I am not invited as a speaker. I cannot go to the seminar. When you're not invited, how can you go? You cannot go. हाँ, would not कब आता? कि आपको इनवाइट किया गया है और आप किसी वजह से नहीं जाओगे, तब would not. अगर इनवाइट ही नहीं किया है तो then you cannot go. I dash come to the party tomorrow if I get free early from work. I may. Will नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा? See, I may come to the party tomorrow if I get free early from work. इसके See, एक तो इसे कंडीशन दी है. If you say I will come tomorrow to the party, if I will come to the party tomorrow, if I get free early from work, ठीक है. Now if he gets free early from work, वहां पे may के चांसेस क्यों ज्यादा है, will क्यों नहीं आएगा? क्योंकि see, the point is that if somebody is already putting a condition, if somebody is already saying if I get free early from work, तो तब चांसेस हैं, तब सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता. सो द पर्सन इज स्टिल डाउटफुल. तो इस केस में आपका मे यूज होगा, विल यूज नहीं होगा. विल मीन्स कंप्लीटली सर्टन, डेफिनेट. नेक्स्ट वन. He dash come near me if he doesn't want me to rebuke him. He dare not come near me, so it's a warning. My niece dash dance effortlessly when she was past ability, could dance. While listening to the radio via earphones, you dash ensure that you monitor the volume of the music. You should ensure. So it's an advice. If he were rich, he
if he were rich, he would have bought an expensive house. He would have bought an expensive house. Should is like advice. When you listen to the problems of the other person with an open mind, only then, when you listen, जब आप problem सुनोगे, only then you can feel their angst. Can means you have the ability to feel their angst, means worry and desperation. अगर आप ought to कहोगे कि only then you ought to मतलब should, या ought to मतलब moral responsibility, वो कैसे आएगा इधर? वो कह रहे जब आप उनकी प्रॉब्लम को सुनोगे तभी आप फील कर पाओगे, आप में कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आएगी। आपको फील करना चाहिए ऐसा बता रहे हैं क्या? नहीं। एज अ मैनेजर यू डैश delegate your work effectively. You need to delegate your work. He searched for his keys everywhere, but he couldn't find them. Couldn't means was not able to in the past, because past की बात हो रही है, wouldn't नहीं. Everybody's fine with this? Difficulties है, practice कीजिए, problems है, मेरे पास ले आइए. हाँ, अभी तो नहीं है मेरे पास, बट मैं अगर होगा तो ग्रुप में भेज दूंगा. मैं हाँ एग्जाम्पल्स मैं शीट ही दे दूंगा अगर ग्रुप में डाल देंगे, बट उससे अच्छा आप बुक ले लो. बुक नहीं लिए किसी ने? कोई भी बुक कॉम्पिटिटिव की, अरिहंत की अच्छी है, एससी गुप्ता की अच्छी है, उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस होता है. कॉम्पिटिटिव की कोई बुक जिसमें बहुत सारा प्रैक्टिस होगा वो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा. यू गेट माई पॉइंट? ठीक है. नाउ हाँ, रूक्ष में हमने कहाँ तक किया हुआ? टेल मी विच इज द लास्ट रूट दैट आई हैव गिवन यू? हाँ, एंथ्रोप. ए ही किया अभी हमने, बी नहीं किया अभी. एंथ्रोप और उसके बाद दैट वाज द लास्ट. एबीएस बताया, इससे पहले क्या? एंटी एंट सीआर. अच्छा, एम्बुल एम्बुल किया, एम्बुलेट, एम्बुलेशन, एम्बुलेंस, वो वाला AMI. ओके फाइन. मूव और वॉक. एम्ब और एम्बुल मीन्स मूव और वॉक. जैसे एम्बुल, एम्बुलेट, एम्बुलेंस, सॉम somnambulant. No such words. So we got amble, ambulate, ambulance, perambulator, somnambulant. That is to move or walk. ठीक है. So amble means a leisurely walk, a walk without any aim or purpose. जैसे गार्डन में कोई वॉक करता है, कोई छत पे वॉक करता है, कोई ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, या पार्क में वॉक करते. सो दैट इज लाइक एम्बलिंग. या कुछ सोचते सोचते वॉक करते हैं, या कोई दिमाग में चल रहा है तो आगे पीछे वो वॉक कर रहे हैं. अ पर्पसलेस, एमलेस, लेजरली वॉक.
Every day she ambles in the park. During summers, people generally amble on their rooftops in the evenings. Amble on their rooftops. समझ आया? Leisurely, purposeless walk. Ambulate means to move from one place to another. Ambulate का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना. जैसे in his line of work, he regularly ambulates between different cities. Ambulation. To ambulates between different cities is travels. Ambulate is to travel, is to move from one city to another. One place to another. Ambulance is which moves patients from house to hospital and hospital to house. That vehicle is called ambulance. Per ambulator आपको इस नाम से पता है. It is called pram. Short form is pram. Per ambulator is pram. या अमेरिका में इसको स्ट्रोलर कहते हैं, जिसमें बच्चों को घुमाया जाता है. छोटे बच्चों को स्ट्रोलर में डालते, स्ट्रोलर में डाल के वो सड़क पे या गार्डन में लेके जाते. दैट इज कॉल्ड पर एम्बुलेटर, टू मूव स्मॉल चिल्ड्रन अराउंड. somnambulent. सॉम का मतलब है स्लीप एंड एम्बुल का मतलब है टू वॉक. तो दोनों को मिलाया तो क्या बना कि a person who walks in sleep. Who walks in sleep, जिसको नींद में चलने की आदत है. That person is somnambulant. Is that understood? अब देखो इसी के मिलता जुलता रूट कितना डिफरेंट हो जाता है. अगर मैं ambi या just wait, ambi या amphi, amphi, that means both. अब यार डिफरेंट, या ambul या ambi या amphi. जैसे ambidextrous, ambidextrous, ambivalent, ambivert, ambiguous. Are you getting? Or amphibian, amphibious, and so on and so forth. So you can write all these words. Ambidextrous. Dexterity का मतलब होता है skill. Dexterity means skill. So when you say ambidextrous, that means a person who can use both hands equally well. जिसको दोनों हाथ का स्किल है, राइट हैंड भी यूज कर सकता है, लेफ्ट हैंड भी यूज कर सकता है. दैट पर्सन इज ambidextrous. Both hands equally well. Skilled in using both hands. Ambivalent. Mixed feelings, or we can say opposing feelings, positive as well as negative feelings about someone or something. जैसे somebody says, I'm ambivalent about settling abroad. I'm ambivalent about settling abroad because on one hand, it offers me a great opportunity in my career, in my life, in my prospect. But on the other hand, I will be missing all my near and dear ones. एक तरह से मुझे मेरा करियर आगे जाएगा, लेकिन फिर जो मेरे लोग हैं वो मेरे से दूर हो जाएंगे. So there is a mixed feeling. There is positive also, there is negative also. So that thing creates an indecision. So ambivalence is indecision, or you can say confusion. Indecision because of I am ambivalent about befriending that person. On one hand, he appears to be a thorough gentleman, but on the other hand,
I hear so many notorious accounts from other people. Two opposing things. That is ambivalence. Ambivert. So आधा introvert, आधा extrovert. At times reserved, at times very open. Both the things, that is called ambivert. Ambiguity, ambiguous, doubt, unclarity. You know, neither fully clear nor fully understood. So half clarity. Both the things. Thoda clarity bhi hai, thoda unclarity bhi hai. So it's having both the things, clarity and unclarity. So that creates doubt. That is called ambiguity. Ambiguous means doubtful. Ambiguous means unclear. Is that understood? अच्छा, amphibian, जो एनिमल लैंड और वाटर दोनों में बोथ में रहे, amphibian. Amphibious भी वो हो सकता है, but a human being is amphibious. A human being can be amphibious in contextual sense if that human being is double-faced. Double-faced क्या होता है? Amphibious means double-faced. जिसके दो मुंह हैं. ये नहीं कि दो मुंह है, मतलब ये एक टाइम पे ऐसा लगेगा यार इतना अच्छा पर्सन, इतना फ्रेंडली, और जैसी सिचुएशन चेंज हो जाए उसका मतलब खत्म हो गया, वो चेंज हो गया. सो दैट इज कॉल्ड डबल फेस्ड पर्सन. यू अंडरस्टैंड? सो हु changes according to circumstances and situations is amphibious, is a double faced person. Is that understood? तो हमारा ए खत्म हो गया. हाँ, अभी हमने एक्चुअली व्हाट आई विल डू इज, सी आई विल डायरेक्टली टेक द हैंडआउट. हैंडआउट में जैसे एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चंस होंगे, उसमें हमारे रूट्स आएंगे. सो उसके रूट्स ऐसे, हैंडआउट के जो वर्ड्स आएंगे उसके रूट्स में आपको देते जाऊंगा. वो वैसे रहेगा, अल्फाबेटिकली भी रहेगा और उसके बगैर भी रहेगा. तो आपको उससे क्वेश्चन का भी पता लगेगा कि एंटोनिम सिनोनिम कैसे क्वेश्चंस आते, और हमें बाकी जितने भी वर्ड्स है वो आप लिखते जाएंगे. जैसे मैंने बताया था, वोकैब की अलग का नोटबुक बनाई हुई है ना आपने, हाँ, उसमें सिर्फ आप वर्ड्स, मीनिंग्स और सेंटेंसेस लिखेंगे. ठीक है? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. दैट्स इट फॉर टुडे. वेलकम.